एक सेक्टर में जल्दी से आपको और दिखा देता हूँ जो चल रहा है शुगर स्पेस, द्वारकेश, बलरामपुर चीनी। ये कुछ शुगर की कंपनीज हैं जो कि अच्छी तरह से इस समय बाजार के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और अच्छा मजबूती भी दे रही हैं। खैर, आज का फ्लेवर चीनी की मिठास नहीं बल्कि बैंकिंग की सेहत सुधारना है और आज बैंकिंग की सेहत सुधर रही है। साथ ही आईपीओ मार्केट की भी तस्वीर आज थोड़ी और क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये चलने वाले कुछ एक और आईपीओ बाजार के अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज का पहला आईपीओ SIS का आईपीओ आज खुल गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच SBI की कॉन कॉल भी चल रही है क्योंकि उन्होंने सेविंग दरों में कटौती की है। आइए सुनते हैं इस समय क्या कह रहे हैं SBI की मैनेजमेंट। The savings bank interest rate has been static since 2011. At that time it used to be 3.5% and now it is 4%, whereas all the fundamentals have changed. The CPI, the consumer price index is almost, if I look at the numbers, in April 12, CPI was 9.8%. Today it is 1.54%. And we have been cutting our term deposit rates also in last 1 year. Even if you look at the PPF rates, they have also come down by 80 basis points. So in this scenario, real interest rate being so high, it was thought that this is high time that the savings bank interest rate is brought up. I got that point, sir. I just wanted to know, by this rate cut, what is the savings will be for the bank, if you've calculated anything on those lines? Yes, I think because we're in the silent period, so you can do your own calculations, but otherwise we will speak more about this on 11. What was the base of savings account as on 31st March? It was like in a post-merger scenario, approximately 9 lakh crore. 9 lakh crore. Okay. And this would have gone up by, what, 15%? No, that, as I said, that is a published figure. So I can speak about that, but rest we will wait till 11. Okay, sir. Sure. Thank you. Okay. Thank you. Next question is on the line of Abhishek Kathari from CNBC TV 18. Please go ahead. Okay, well, I'm Lata Venkatesh actually speaking on... Mr. Rajneesh Kumar, I wanted to know, when you calculate MCLR, is savings account cost included at all? So because of this cut in savings rate, will your MCLR change? The way it works is that again in the month of August, our ALCO will meet, and all the costs, including savings bank, cost of funding, all is taken into consideration. Okay. And then based on the formula, because it is a predetermined formula, so we will see how much impact it will have. Can you give us some idea? I mean, sure, it's 36% of your deposits are from savings account, so it should have some impact on the MCLR. Therefore, logically, lending rates should fall. One is it is the marginal cost of lending rate. That is one, of course, in savings bank, the benefit flows immediately as soon as the cut is done. And there are other considerations also into MCLR, which includes the operating costs, which includes your expected return on net worth. So MCLR, the cost of funds alone is not a factor. But definitely when we are in a downward interest rate scenario, then it will be very difficult for me to give you an estimate at this stage. But as I said, that maybe you have to watch for the last week of August. And for September MCLR announcement, it will reflect any rate cuts which bank does. But in addition, if the Reserve Bank cuts rates, should we expect further impact, further decisions from banks like you? I mean, will your term deposits therefore be dropped? Term deposits, we will take a call. And as I said, that in last 6 months, bank has cut the interest on term deposits quite aggressively. So if there is a scope, we will see, because we have to take into account the competition. So you cut aggressively on Jan 1st, sir. After that, you all have not cut aggressively. So if there is a cut now, is there a chance it will be passed on? Yeah, just I would request Anshula is also with me. So this TD, how much we have cut, she will be able to tell you. Lata, just one small point to the previous question. We have said it in our stock exchange guidance also. Basically, तो सेविंग की जो दरें हैं वो यहाँ पे यही कहते हुए दिख रही है कि आगे चल के हो सकता है, अब अगर पॉलिसी में कुछ और कट आ जाए तो यहाँ बैंक वापस कंसीडर कर सकता है, लेकिन ये इफेक्टिवली काम करेंगी। बैंक को काफ़ी पैसा बच रहा है, 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बताई जा रही है
और इसका फायदा यहाँ पे जरूर होता हुआ दिख रहा है। सभी बैंक्स और भी चल रहे हैं, पंजाब नेशनल, कैनरा, इन सब के पास भी अब ये बेस बन चुका है। देश के सबसे बड़े बैंक ने सेविंग दरें घटाई हैं, तो स्वाभाविक है दूसरे बैंक शायद इनको फॉलो जरूर करते हुए दिखेंगे, और वैसे भी हफ्ता बैंकिंग के नाम ही था। अब आते हैं आईपीओ पे। तो एक हिस्सा बाजार का जो आज चल रहा है वो है ये, और दूसरा हिस्सा जो कि सेकेंडरी मार्केट से आपको प्रोपेल कर रहा है वो है आईपीओस। आज एसआईएस का आईपीओ होगा, ये 2 अगस्त को बंद हो जाएगा। 850 से 815 तक का प्राइस बैंड है, तो इस प्राइस बैंड के साथ से रकम जुटानी जा रही है, और आईपीओ से करीब 780 करोड़ रुपए जुटाया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए ऋतुराज है, क्योंकि ये कंपनी अपने आप में बहुत अहम है और उसके मैनेजमेंट के तौर पर है। ऋतु, शुक्रिया समय देने के लिए। पहले तो ये जो आईपीओ है, आप जो रकम जुटा रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? क्योंकि आप तो एक सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, तो सर्विसेज सेगमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए आप रखना चाहेंगे इस पैसे को, ये ऑब्जेक्टिव क्या है रकम जुटाने का? देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ चैनल पे आने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि एसआईएस ग्रुप इंडिया की लार्जेस्ट बिजनेस सर्विसेज की एंटिटी है। करीबन 4600 करोड़ का हमारा टर्नओवर था FY17 का। हम 3 एरियाज ऑफ वर्क में काम करते हैं, सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी में हम करीब 2nd पोजीशन पे हैं और लगातार करीबन पिछले 5 वर्षों में 32% के सालाना ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। कैश लॉजिस्टिक्स में भी हम नंबर 2 है, और फैसिलिटी मैनेजमेंट में हम नंबर 4 है, लेकिन पिछले वर्ष हम लोगों ने 42% ईयर ऑन ईयर ऑर्गेनिक ग्रोथ किया था। अच्छा, इस ऑर्गेनिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता रहती है, और हमारा जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसका लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑर्गेनिक कैपिटल, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए वर्किंग कैपिटल ही है। तो इस इशू के माध्यम से जो हम 362 करोड़ रेज कर रहे हैं, उसमें से सीधा सीधा करीब 200 करोड़ वर्किंग कैपिटल और एक्विजिशन के लिए जो हमने हाई कॉस्ट लोन लिया था, अच्छा, उसको रिटर्न करने के लिए जाएगा। ठीक है। और उस 200 करोड़ के रिटर्न से एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग रहेगी, जो हमारे पैट को और ईपीएस को बूस्ट करेगी। ठीक है। अच्छा रितु, ये कितना होगा? कुछ टेंटेटिव अप्रॉक्स कैलकुलेशन आप देख की तो होंगी ना, कि कितना इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा? करीबन अगले साल करीबन 24-25 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट का सेविंग होना चाहिए। 24-25 करोड़ पैट में एडिशन होना चाहिए इस इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन के वजह से। ठीक। अच्छा रितु, एक और चीज है, क्योंकि आप बता रहे हैं ना 3 सेगमेंट में आप सिक्योरिटीज में, कैश लॉजिक और फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर है, तो इसमें से ग्रोथ कहां पर अच्छी है? देखिए, फ्रॉस्ट एंड सलिवन की जो इंडस्ट्री रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा है कि करीबन 18 से 20% का ग्रोथ अक्रॉस सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक और फैसिलिटी मैनेजमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा अगर विस्तार में जाके समझाऊं तो सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जहां पे नई फैक्ट्री लग रही हो या एक पुरानी फैक्ट्री पे ताला लग रहा हो, सिक्योरिटी सर्विसेज और कैमरा और बाकी चीजों की जरूरत हमेशा वहां बरकरार रहती है। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो या आप कोई सरकारी ऑफिस या महकमा हो। उसी तरह फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप जितना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट की खास आवश्यकता है, और ये इनहेरेंट है इसकी डिमांड। ठीक है जी बिल्कुल। रितु, शुक्रिया समय देने के लिए। आज थोड़ा सा समय कम है, आपसे ज़रा बात नहीं हो पाई, किसी दिन और आपसे ज़रूर बात होगी, और पहले मैं आपको विशेष दे रहा हूँ कि आपका आईपीओ सक्सेसफुल चले, आगे चले, आपसे ज़रूर हम बात करेंगे आगे भी। लेकिन इस बीच प्रणव हल्दिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रणव, शुक्रिया समय देने के लिए। ये जो थैमेटिक आईपीओज आ रहे हैं ना, मार्केट इसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये CDSL दिखा, हुडको दिखा, अब ऐसा ये सिक्योरिटीज भी आ रहा है, जिसके मैनेजमेंट से भी बात भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि और डेट को इससे थोड़ा कम करेंगे। ये थैमेटिक वाली थीम तो इंडियन मार्केट को सूट कर रही है सर, चलेगा ये भी? जी, पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो काफी अच्छा रिस्पांस आया है आईपीओस का, सब्सक्रिप्शन से भी, और अगर हम लिस्टिंग के भी देखें तो लिस्टिंग रिटर्न भी अच्छा दिया है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम देखें कि हमारा सेकेंडरी मार्केट
बॉयेंट रहता है, पॉजिटिव रहता है, तब तक हम उसका इफेक्ट प्राइमरी मार्केट में भी देखेंगे। सो जैसे अभी हमें मार्केट निफ्टी 10,000 के आसपास पहुंच गया है, बहुत फ्लोज आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज एंड फॉरेन फ्लोज। तो जब तक ये चलेगा तब तक हम प्राइमरी मार्केट में भी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने जो सेक्टोरल सेक्टर्स की बात करी वो भी सही है। पिछले 2-3 साल में अगर हम देखें तो काफी नए सेक्टर से कंपनीज आई हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से हो, सिक्योरिटी से हो, डिपॉजिटरीज हो, एक्सचेंजेस हो। तो ये नई स्टोरीज हैं जो इन्वेस्टर्स लैप अप कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है प्राइमरी मार्केट का। ठीक है प्रणव, आज थोड़े से समय की कमी है, आपसे बात नहीं हो पा रही है अभी, लेकिन ठीक है, आपका व्यू ये काफ़ी वाजिब है कि मार्केट के अंदर जो प्राइमरी मार्केट का थीम है ये आगे भी चलती रहेगी। और हम ये कह सकते हैं कम से कम मौका आपको थेमेटिक शेयर्स में तो मिलेगा। धोखे के लिए आपको थोड़ा सा ये देखिएगा कि किसी की वैल्यूएशन ज़्यादा ना आ जाए जो बाजार नहीं देना चाहता। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, हमने उनसे पूछा भी था और वो सब वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, लेकिन थेमेटिक थीम चलेगी।